مولانا فضل الرحمان مریم نواز اس وقت ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ نواز صاحبہ کے ساتھ ملاقات ہوئی اور ملک کو درپیش صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ بعض ایسے اقدامات جو حکومت کے سامنے آ رہے ہیں اور جو ملک کی بقا کے لیے رسک بن رہے ہیں۔ حال ہی میں تقریباً 6 روپے بجلی کو مہنگا کیا گیا ہے۔ مہنگائی کے حوالے سے انہوں نے چھوڑا کیا ہے کہ مزید ایک پہاڑ غریب قوم کی کمر پر گرا دیا گیا ہے اور ان کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ آخر یہ قوم کو کہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس ملک کو کہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے حوالے سے اسے خود مختار بنانے کا قانون، جہاں پر وہ صرف بین الاقوامی مالیاتی اداروں کو تو جواب دہ ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کے کسی ادارے، حتیٰ کہ نہ ملک کے وزیر اعظم کو نہ وزیر خزانہ کو جواب دہ ہوگا۔ تو اس طریقے سے اس کو IMF کا ذیلی ادارہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، بلکہ کی جا رہی ہے۔ یہ ملک کی خود مختاری کے منافی اقدام ہے اور پاکستان کو معاشی لحاظ سے غلام بنانے کا ایک انتہائی بھونڈی حرکت ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے قسم کے اقدامات کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔ ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی خود مختاری اور آزادی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ وزیر خارجہ کا یہ کہنا کہ ہندوستان کشمیر کے بارے میں، کشمیر کے سقوط کے باوجود اور اس کے سقوط کو برقرار رکھتے ہوئے ہم ان سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ ظاہر ہے کشمیر کے حوالے سے مودی سرکار کا اقدام بین الاقوامی طور پر بھی جمہوری دنیا میں قبول نہیں ہے، ایک دباؤ ہے، اور ہم ہندوستان کو دباؤ سے نکالنے کا سبب بنیں گے اگر ہم نے اس صورتحال میں ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے حامی بھر لی۔ 26 مارچ کو محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو نیب میں طلب کیا گیا ہے۔ ان کی پیشی کے بظاہر جو وجوہ بتائے گئے ہیں، اس نے نیب کو بے نقاب کر دیا ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ نیب ایک کٹ پتلی ادارہ ہے۔ آج بھی اس نے جو ضمانت کی منسوخی کے لیے عدالت کو رجوع کیا ہے، وہ بھی اسی بنیاد پر کہ جی آپ تو اداروں کے خلاف بولتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے نہیں بنا یہ ادارہ، بلکہ اداروں کی خدمت کرنے کے لیے بنا ہے، اس کی ترجمانی کے لیے بنا ہے۔ 26 مارچ کو جب مریم نواز صاحبہ پیش ہوں گی تو PDM کے تمام پارٹیوں کے کارکن موجود ہوں گے، ہماری اپنی پارٹی کے کارکن موجود ہوں گے، ہزاروں سے نہیں لاکھوں تک انشاءاللہ العزیز کارکن اس میں آئیں گے، اور PDM کی قیادت بھی، شخصیات کا تعین ہم بعد میں کریں گے، لیکن ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ العزیز شانہ بشانہ ہوں گے۔ یہ چند گزارشات تھیں آپ تک ہمارے پیپلز پارٹی جو ہے وہ PDM میں مین سٹیک ہولڈر آپ کے ساتھ تھی، تو سینٹ کے اندر جو اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے معاملات جو ہے کیا حل ہوئے؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے وہ یوسف رضا گیلانی کو بلانا چاہتے ہیں اور نون لیگ جو ہے اس کے حوالے سے بھی نام سامنے آ۔ دیکھیے ایک بات گزارش کروں، آج کل میڈیا کا بڑا زور ہے اور وہ مسئلے کو جس رنگ میں بھی پیش کرے اس کا اختیار ہے، لیکن PDM الحمدللہ متحد بھی ہے، اور ہم باہمی رابطوں کے ذریعے سے
कुछ मामलात हैं जो इंशाअल्लाह वो हमारे कंट्रोल में हैं और उनको मुकम्मल कंट्रोल कर लिया जाएगा। हमने मिलकर सफ़र करना है और ये बात अपनी जगह पर है कि अब PDM की 9 जमातें जो एक सोच रखती हैं, हम यही पीपल्स पार्टी से कहेंगे कि वो 9 जमातों की राय का एहतराम करें। ताहम पीपल्स पार्टी के CAC के फ़ैसलों का भी इंतज़ार किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के दलाइल पर मज़ीद हम गौर करने के लिए भी तैयार होंगे और उनके साथ हम इंतहाई खुशगवार माहौल में अपने मामलात को ठीक करेंगे ताकि PDM सिर्फ मुत्तहिद ही नहीं बल्कि मुअस्सर भी रहे और मुअस्सर अंदाज के साथ हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये बताइए कि जिस तरह आपने हुक्म भी बर्दाश्त किया, आपकी वालदा का भी इंतकाल हुआ, वालिद साहब आपके बेटे में इलाज करवा रहे हैं, मगर क्या वजह है कि ये आप समझते हैं कि ऑपोजिशन जमातों की मिस कोऑर्डिनेशन है या पीपल्स पार्टी लग रहा है कि वो जिस चोर रास्ते छूट के भाग रही है कि हुकूमत जो है वो अभी तक जबर भी कर रही है, महंगाई भी है और अभी तक मुसल्लत है? क्या ऑपोजिशन के इत्तेहाद ना होने की वजह से हुकूमत फ़ायदा ले रही है? इस पे मौलाना साहब अभी फरमा चुके हैं, अपना इजहार ख्याल कर चुके हैं कि कोशिश तो हमारी यही है कि तमाम जमातें मुत्तहिद रहें, लेकिन PDM से मुस्तकबिल नहीं जुड़ा इमरान खान का। इमरान खान और उसकी जाली हुकूमत का मुस्तकबिल उसकी कारकर्दगी से जुड़ा है। PDM में पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, PDM क्या कर रही है, उससे कतई नज़र जो नाअहली और नालायकी ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया है, उसका जवाब बहरहाल इमरान खान ही को देना है, उसका जवाब PDM को नहीं देना। और रहा सवाल PDM के मुत्तहिद होकर जवाब मांगने का, तो PDM इतनी मुत्तहिद है कि इस जवाब को पूरे ज़ोर शोर से मांगेगी, आवाम की नुमाइंदगी करेगी और किसी मौके पर भी हुकूमत को कोई लेवरेज नहीं देगी, हुकूमत को कोई पतली गली से निकलने की इजाज़त नहीं देगी और भरपूर नुमाइंदगी करेगी। ये बता दें कि कराची में जो इलेक्शन हो रहे हैं मिर्ज़ा इस्माइल साहब की, तो पीपल्स पार्टी या नून लीग की हिमायत करेगी क्या? अभी इस पे बातचीत जारी है, जब कोई फैसला हो जाएगा तो आपके सामने आ जाएगा। अच्छा मरियम साहब ये बताएगा कि क्या मुस्लिम लीग नून के सेनेट डिप्टी अपोजिशन लीडर के लिए आजम नज़ीर तारड़ और सादिया अब्बासी साहबा अभी भी कैंडिडेट है या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के नाम पे कोई नेगोशिएशन हो सकती है? दूसरा इन्हें एक सेकंड पहले एक सवाल का जवाब देने दें। ये मुत्तफ़िका PDM का फ़ैसला था जो कि एहसन इकबाल शाहिद खाकान अब्बासी साहब के घर पे तमाम जमातों की भरपूर नुमाइंदगी के साथ हुआ था, जिस पे PDM की मोहर लगी हुई है और उसमें पूरा कंसेंसस था कि सेनेट चेयरमैन के लिए सब जमातें जो हैं PDM में जो शामिल हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सपोर्ट करेंगी, वोट भी देंगी और उसके लिए जो डिप्टी चेयरमैन हैं उसके लिए JUIF के जो उम्मीदवार थे हैदरी साहब उनको भी सपोर्ट करेंगी और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा। अब चूँकि ये असूली फ़ैसला हो चुका है और किसी की हार जीत के बाद इसमें कोई गुंजाइश नहीं है तब्दीली की, क्योंकि ये बात नहीं हुई थी कि कोई हार जाएगा तो ये फ़ैसला तब्दील हो जाएगा। ये एक असूली फ़ैसला हो चुका है और मैं उम्मीद करती हूँ कि असूल के तहत इसी फ़ैसले पर सब जमातें जो हैं वो खड़ी रहेंगी। मेरा ज़ाती ख़्याल है, मौलाना साहब से ये बात अभी हुई है, मौलाना साहब भी असूली बात को सपोर्ट करते हैं, बाकी जमातें भी, और अगर कोई इसमें समझता है कि उनके लिए गुंजाइश निकल सकती है तो मेरा ख्याल है कि उनको भी मनाया जा सकता है कि असूली फ़ैसला हो चुका है, इसको दोबारा खोलने की अब ज़रूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी के बगैर एहतजाज करने में, गाँव मर्ज करने में क्या रुकावट है? आपकी बड़ी जमात है, PML की बड़ी जमात है और जमातें आपके साथ हैं, तो रुकावट क्या? पीपल्स पार्टी के बगैर आप क्यों नहीं सर? पीपल्स पार्टी तो बड़ी जमात है, अगर एक छोटी सी जमात भी वो अपना एक कंसर्न रखती है तो हम उसको भी बड़े मुस्बत अंदाज के साथ और बराबरी की बुनियाद पर उसको हम डिस्कस कर सकते हैं और उसको एड्रेस कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी तो हमारे PDM की एक बड़ी जमात के तौर पर हमारे कंपोनेंट है, तो हम बड़े खुशूसलूबी के साथ उनकी कोई शिकायत हो या उनकी कोई राय हो तो उस पर उनके साथ बातचीत करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मरियम साहब ये फरमाइएगा कि पीपल्स पार्टी जो है क्या अगर है तो अब कब है या मुल्तवी
उसको भी फिर हमने अपने सरबराही इजलास ही में नई तारीख दे दी। अच्छा मरियम साहबा, ये फरमाइएगा कि पीपल्स पार्टी एक तो इस्तीफ़ों के मामले पे जो है उसने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया, और जैसे आपने फरमाया कि अपोजिशन लीडर का ये फैसला हो चुका है कि PMLN से होगा, तो उस पर भी पीपल्स पार्टी अपना कैंडिडेट जो है वो लेके आना चाह रही है। तो क्या पीपल्स पार्टी जो है वो PDM के साथ रहेगी या उसके बगैर अब अगला सफ़र होगा PDM का? देखिए, जहाँ तक तो PDM के साथ वो रहेगी, ये तो ज़ाहिर है उन्हीं का फ़ैसला है, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती। लेकिन अभी इन्होंने एक बड़ा अच्छा सवाल किया कि JUIF या जो PMLN है वो अपने ओन पे पब्लिक एजिटेशन कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। अपने ओन पे माशाल्लाह बड़े बड़े जलसे कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। ना सिर्फ कर सकती है बल्कि JUIF ने भी और PMLN ने भी बहुत बड़े बड़े जलसे, जुलूस और रैलीज़ की हैं अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के अंदर। तो मुस्लिम लीग नून माशाल्लाह एक ऐसी जमात है, JUIF की बहुत बड़ी फॉलोइंग है, उसके लिए हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेहतर होगा कि सारी अपोजिशन अवाम के मुतालिबात पे यूनाइटेड हो, और अवाम के अंदर मज़ीद सख्त नहीं है इस हुकूमत को बर्दाश्त करने की। तो मुस्लिम लीग नून और JUIF को और PDM को इन्हीं जो तवक्कुआत हैं अपोजिशन की से अवाम की, उनकी तर्जुमानी करनी चाहिए और मिल के करनी चाहिए। बस मेरा कन्वेंशन है अभी। थैंक यू। हमज़ा शहबाज साहब से जो इख्तलाफात की खबरें एक दो दिन से चल रही हैं बहुत शर्मनाक हैं, और मैं ये कहती हूँ कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह ताला की लानत हो झूठों के ऊपर। हमज़ा साहब अभी मेरे साथ शामिल थे मौलाना साहब के खाने के ऊपर जो दावत थी, और हमारी डिस्कशन में एक एक चीज़ में वो शामिल थे। उनकी बेटी जो जिसका हार्ट की सर्जरी हुई थी, जब वो पैदा हुई थी, उसके वो डॉक्टर आए हुए हैं, अब वो वहाँ गए हैं। तो मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि अगर 30 साल से ये प्रोपेगेंडा फेल होता आया है तो अभी भी इनके मुंह के ऊपर जाके ये लगेगा। मैं लेकिन एक दो मीडिया के चैनल्स हैं जिन्होंने ये खबर चलाई और बेबुनियाद खबर चलाई, मैं ये समझती हूँ कि उनको कम से कम अल्लाह ताला का खौफ करना चाहिए इतने बड़े बड़े बेबुनियाद झूठ बोलने पर। मैडम आपने किया था जिसपे आपने कहा था कि सिलेक्टर को परेशान होना चाहिए कि उनके सिलेक्टेड तैयार हो रहा है, तो ये आपका इशारा किसकी तरफ था? अगर मैंने इशारा न करना होता तो फिर मैं खुल के बात करती, मैंने इशारा करना था, कर दिया। और मौलाना फजल रहमान मुलाकात के बाद मीडिया टॉक कर रहे थे और बता रहे थे कि क्या फैसले हुए हैं। साथ ही बात आई कि पीपल्स पार्टी अलहदा हो गई है। इस पर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अगर छोटी पार्टी भी अलहदा हो जाती तो उसका भी अपना स्टेक होता है, पीपल्स पार्टी तो फिर बड़ी जमात है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान और उसकी आज़ादी और खुद मुख्तारी के साथ खड़े होंगे। मौलाना फजल रहमान ने ये कहा, जबकि मरियम नवाज़ का ये कहना था कि सेनेट चेयरमैन के हवाले से ये उसूली फैसला हो गया था कि यूसुफ रज़ा गिलानी ही चेयरमैन सेनेट बनेंगे, अपोजिशन लीडर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि तमाम जमातें इस उसूल की पासदारी करेंगी। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen.